Hello everyone, good afternoon all. I hope you all are doing absolutely awesome and I hope आप लोग कल्ट एसएसबी के साथ शुरू से बने हो एंड सिंस आप लोग ने इससे पहले भी और भी हमारे रिकमेंडेड और सक्सेस फुल कैंडिडेट्स के अपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, काफ़ी कुछ सीखा होगा. सो आज उन्हीं में से एक और वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंडिडेट जो अब अपकमिंग डेज में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने वाले थ्रू टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन एंट्री दैट इज TGC and that too for TGC 140 कोर्स के लिए recommend हुए and he has recently secured all India rank 4 for overall merit in electronics branch. And the best part of all this, previously he was a screen out candidate, then he eventually got recommended, then finally he also topped in the merit. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सोचते हैं सर मेरिट में आना भी एक चैलेंज है, सो ही प्रूव्ड इट एवरीथिंग and made sure that ki single attempt is needed to make it through the to join the academy. So today we have Mr. Ayush from Panchkula and he has got recommended for TGC 140 from 19 SSB Prayagraj and he has done his BTech from electronics from NIT Hamirpur. So heartiest welcome Ayush on behalf of whole Cult SSB and family. Thank you, sir. Thank you for inviting me again to this cult batch, and I'm really overwhelmed to share this success with you all. Great, good to know that. So आयुष यहाँ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे जो ऑडियंस है जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रिटर्न हो, SSB हो या इवन बहुत सारी चीज़ों के. सो थोड़ा यार अपने इंट्रोडक्शन दो, आप अभी लाइक कहाँ से हो, क्या करते हो एंड थोड़ा अपने बारे में बताइए. So currently I'm just graduate passed. मैंने recently this year itself I've been passed from the NIT Hamirpur dual degree BTech plus MTech. It was a 5-year integrated course, and immediately after the graduation I was on campus placed into Greby. Greby is an intellectual property consulting firm where I am in the team of infringement analysis. We perform analysis on the infringement which the companies pose on the other companies' patents. So this is what I do currently. Okay, all right, that sounds good. So you got placed after as soon as you're done with your engineering, and particularly you're from NIT. So यहाँ there are a lot of candidates who will be thinking कि should I join JEE, should I join NIT or join NDA. So now everybody है ना would love to know कि सिंस यू वेर ऑल्सो एन एस्पिरेंट टू जॉइन आर्मी सिंस योर चाइल्डहुड, लाइक आपके 12th के बाद आपने यू हैव ऑल्सो गिवन NDA. सो वॉट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम एंड डू शेयर अबाउट बिफोर योर लाइक आफ्टर योर 12th class entries. So immediately after 12th I gave my NDA and TES both of the entries, and I was screened out there. I think I was low on confidence, or I was not aware of what SSB is. I did not know. I was very young. So, but now, I mean, if I was given that chance again, I would definitely prepare myself for the SSB at that point, because that is the best entry that anyone can get. Correct. Very rightly said. So for all the audience, he mentioned that कि तैयारी अगर अच्छी करोगे इनिशियल अटेम्प्ट में तो है ना इतनी लंबी जर्नी नहीं होती है. सो आयुष, लाइक एवरीबडी टेल्स आस्क्स कि क्या अच्छा किया है, बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू नो कि आपने ऐसे क्या चीज़ें उस टाइम पे नहीं करी विच एवरी कैंडिडेट शुड डू इन देयर इनिशियल अटेम्प्ट्स ऑफ NDA एंड TES विच कुड हैव हेल्प यू टू गेट रिकमेंड ड्यूरिंग दोज डेज, क्योंकि इवेंचुअली नाउ यू आर रिकमेंडेड, यू हैव जॉइनिंग अकेडमी दैट टू विद अ वेरी गुड रैंक. सो आपने दोनों साइड देखा है, तो डू शेयर विद ऑल द ऑडियंस कि क्या चीज़ें गलती करी होगी उस टाइम पे जो जनरली कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए. गलती the most important is the mindset with which we attend the SSB. तो mindset होना चाहिए, जैसा हम सीखते हैं कल्ट में कि we should have a warlike mentality when we are appearing for the SSB. और मैं उस वक्त I was a very child कि कितना ही बड़ा होता है उस वक्त बच्चा, और मेरा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड है भी नहीं है मेरे घर पे किसी का भी. तो दैट्स वाई कि मेरे को तो था ही नहीं एक्सपीरियंस कि कैसा होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रहना है, कैसे लिखना है. तो वो सारी चीज़ें यू शुड हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग इवन फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो पहली बार ही जा रहा हूँ एक्सपीरियंस लेके आ जाऊँगा. नहीं, यू गो वंस, यू क्रैक इट वंस. करेक्ट है ना. सो ही मेंशन्ड रिगार्डिंग कि आपको माइंडसेट पे काम करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड
क्योंकि दैट इज़ द बेयर मिनिमम विच यू कैन डू फॉर SSB प्रिपरेशन, बिकॉज यू कांट जस्ट डायरेक्टली गो एंड डू आर्मी ट्रेनिंग और NDA ट्रेनिंग और वॉट एवर. क्योंकि आई Right. एम ऑल्सो एन एक्स आई ने, काफ़ी लोग को पता है यहाँ ऑडियंस में कि इट्स नॉट दैट ईजी टू ट्रेन योर सेल्फ, इट टेक्स लॉट ऑफ मेंटल रॉबस्टनेस. सो आयुष, है ना, लेट्स मूव ऑन टू द जर्नी ऑफ SSB प्रिपरेशन. क्योंकि नाउ यू मैंशन दैट यू आर वर्किंग विद अ फर्म एज वेल एज यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर SSB. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. थोड़ा सा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. हाउ डिड यू बैलेंस बोथ द प्रिपरेशन, बिकॉज इट्स वेरी टफ फॉर सम पीपल हु फील दैट यार जॉब के साथ कैसे तैयारी होगी. कोई कोई कॉलेज के साथ भी तैयारी कर रहे होंगे, इधर दे आर इन देयर फाइनल ईयर और either they are into some first year second year in their college. So how did you manage those preparation, balance things? Balance has to be achieved. First of all, it's not like ki, you can try anything. There's no such nothing as such ki trying. You either you have to do it or you don't have to do it. तो मेरा ऐसे ही था कि आई यूजुअली मतलब जनरली मेरे 9 वर्किंग आवर्स होते हैं, बट दे आर ऑलवेज एक्सटेंडेड टू 11 और 12. मतलब इट इज़ वेरी कॉमन. तो आफ्टर 12 वर्किंग आवर्स मतलब यू कम इन द मॉर्निंग, यू आर गोइंग एट नाइट. तो देन बैलेंसिंग द क्लासेस फॉर द कल्ट, एंड आई रियली थैंक Pallab sir and Dhruv sir for taking my classes early in the morning, and Ashish sir taking my classes and interviews at night. तो आई रियली थैंक कि उस वक्त मेरे को ये ऐसे बैलेंस हो गया. ऑफ कोर्स नींद नहीं आई, मतलब इतना नींद मेरे को सैक्रिफाइस करनी पड़ी, पर वर्थ, इट इज वर्थ इट. Correct. So basically, simple है. If something is, if you want something in your life, then you have to do it. And anyhow, sacrificing sleep, balancing stuffs, है ना, not complaining कि ऐसा नहीं हुआ and what not. क्योंकि if you are working somewhere, then you are doing something great for sure reasons. But at the same time आपका जो बोलते हैं ना, if you have plan B as career or something as a career thing, तो you have to work really hard, and Ayush is such an epitome for the same. सो आयुष, आपने जैसे मेंशन किया कि आप सुबह भी सेशन लेते थे, शाम को भी लेते थे, एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन, ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर साइक बैच, इंटरव्यू बैच, इवन ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ मिनी संपूर्णा, दो ही वाज मोर इनटू रिकॉर्डिंग सेशंस कि सर मैं लाइव नहीं आ पा रहा, आप रिकॉर्डिंग भेज देना. आई स्टिल रिमेंबर, एंड बट स्टिल बोलते हैं ना कि आप कैसे भी देखो, इफ़ यू आर क्लियर विद योर माइंड सेट कि मुझे कंप्लीट करना है, तो एनी हाउ यू विल डू इट. सर ये चीज़ पे हाईलाइट करो कि आप रात को भी जब आप प्रिपेयर करते थे, है ना, जैसे मतलब आउट ऑफ नोवेयर कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों का. सो हाउ डिड यू फोकस्ड योर माइंड आफ्टर दिस ग्रिलिंग डे ऑफ वर्क, एंड देन ऑल्सो लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, फैमिलीज एंड अदर थिंग. सो हाउ डिड यू मेंटेन दैट काम, कंपोज पीस? Sir, I guess this is what I was preparing myself for, and it was not just ki work and SSB. मतलब apart from other things, I had to go to gym to maintain my physique, and then coming back and eating food, spending time with family also. So there were a lot of things that were going on at that point of time. But this is what I was training my mind for, to prepare for anything that comes, and not compensate and compromise any aspect of the life. So yes. सो दैट इज़ द रीज़न, मतलब आपने बेसिकली अपने माइंड को उस तरीके से फ्रेम कर रखा था कि यू शुड नॉट गिव अप एनी हाउ एट एनी मोमेंट. Right. ग्रेट आयुष. सो आयुष, नाउ है ना, लेट्स डाइव इनटू योर SSB थिंग. सो प्रीवियसली यू मेंशन्ड यू आर ट्वाइस स्क्रीन्ड आउट फॉर योर ND and TS, मतलब 10+2 BTech Navy, and eventually after some years of engineering and other thing, and you were also a part of NIT. So how all these things helped you, and also since you joined cult hardly few days before your SSB, with a lot of things, commitments in your life, how did you got screened in and back to back got recommended and secured all India rank 4? क्योंकि एकदम स्ट्रेट में हुआ, जब होता है ना एक बार में मिलता है तो एक बार चप्पट फाड़ के मिल रहा है आपको. तो बताइए, हाउ वाज दिस थिंग? सर ऐसे सुनने में तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर सेइंग इट लाइक दिस, पर मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि इट वाज मतलब बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ लाइक लेयर ऑन लेयर 5 साल तक. तो एवरीथिंग दैट आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ एज इन दी SSB, तो वो 5 साल वाली सारी चीजें थी जो था. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी
10+2 स्क्रीन आउट, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था आई थिंक, और मेरी सोचने वाली मेंटालिटी भी बहुत अलग थी. बट ओवर द कोर्स ऑफ 5 years, मतलब आई हैड एनरोल्ड माई सेल्फ इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड को करिकुलर्स, कंसिडरिंग कि मैंने अपनी एकेडमिक्स भी उसी लेवल पे थी, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग होती है टीजीसी की डायरेक्टली, देयर इज नो पेपर एंड ऑल, तो वो भी क्राइटेरिया पास हुआ है, which means कि good CGPA was maintained. And then taking, not just getting involved in curricular activities, but जितने भी clubs में मैं involved था उनकी मैंने leadership roles भी लिए थे. तो of course जब when you are training a team of 20 juniors with you, तो you gain that confidence and resource maintain करने वाली mentality भी. तो all the course of 5 years मतलब ये सारी चीजें ट्रेन हुई. पर अब एसएसबी में ये चीजों को प्रेजेंट कैसे करना था, देयर कम्स द रोल ऑफ कल्ट एसएसबी, जिस जहां मैं इस तरीके से मोल्ड हुआ कि हाउ डू आई हैव टू प्रेजेंट ऑल ऑफ दिस, और अपनी साइकोलॉजी को पेपर में कैसे उतारना है, मतलब दिमाग में रहेगी वो, बट एसेसर तक कैसे पहुंचना है. दैट इज व्हाट कल्ट showed me a path. So Ayush, now since you told about कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर को भी बैलेंस किया, को करिकुलर को बैलेंस किया, एंड ऑल्सो यू टुक अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर कॉलेज डेज, एंड दैट लेयर्ड बाय लेयर्ड हेल्प्ड यू. सो what piece of advice you would give to people who are watching this in their final year or in their initial days of their engineering or graduation? So what all things they should inculcate in their college days, so that definitely if they are preparing for CDS, AFCAT, SSC, direct entries या जो भी एंट्रीज की ग्रेजुएशन के बाद है, so क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? If anybody is listening to this and he or she is in the initial years of their engineering or college, so you must get enrolled in as many clubs as you can manage. मतलब if you can manage 2 clubs along with your studies, it is good. नहीं तो मेरे तो 5 थे, मतलब just letting you know 5 थे. तो और if anybody is in the final year of engineering की अब तो clubs में enroll होने वाला time गया, तो get yourself enrolled into some NGOs or social work internships. क्योंकि there are a lot of opportunities if you want and if you look out for them. So definitely they are going to help on in your resume and CV and SSB as well. Correct. Rightly said. I still remember when we were evaluating your PIQ. So ऐसे काफ़ी सारे एरियाज ऐसे भी थे जो किस तरीके से एक्सप्रेस करें, एंड हमने तो इसी लेवल पे किया है, हाउ टू मेक इट मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. सो आई होप है ना आपने देखा होगा PIQ आफ्टर, है ना, एक कैंडिडेट को हम एक ही चीज़ कहते हैं जो एनरोल होते हैं, आप अपना पहला PIQ भरो और अपना 4th PIQ देखना, देयर विल बी अ स्टार्क डिफरेंस काफ़ी हद तक द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स. सो दैट वी विल कवर डेफिनेटली इन द सब्सिक्वेंट पार्ट्स. सो नाउ आयुष, जैसे आपने मेंशन किया आपने कॉलेज के साथ चीज़ें करी एंड फाइनली गॉट स्क्रीन्ड इन. सो नाउ टेल अस कि आप जैसे जो अभी 19 SSB जब हुआ है आपका, सॉरी जो आप जिस बोर्ड से अभी रेकमेंड हुए हो, सो जो जहाँ पे अपने अभी हुए हो, सो व्हाट पीस ऑफ राइट थिंग्स विच यू हैव डन विच मेड श्योर दैट आप स्मूथली स्क्रीन इन हो एंड आफ्टर यू गॉट स्क्रीन आउट ट्वाइस, एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान कैंडिडेट्स को रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग इज कंसर्न्ड. सो गिव फोकस ऑफ योर स्क्रीनिंग पोर्शन, एंड क्या चीज़ों का इन जनरली हम जब प्रैक्टिस करते तो क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे? तो when we used to practice, आपने बड़े अच्छे से समझाया था कि assessors screening को कैसे assess करते हैं. तो there are 3 assessors, all 3 of them individually assess YN वाली चीज, and then there are 4 parameters. 4 parameters में पहला perception, then narration, नहीं story, then narration and then discussion. तो ये 4 aspects. If all 4 of these are really good, so of course it's a Y. You are definitely screened in. So I made sure कि I perceived the image very clearly and very vividly. But if it is blurry, then it is meant to be, open to imagination. You have to understand this. And then after that, making a good story, which good story has another area of expertise. कि वहाँ पर micro actions involved होने चाहिए. There is a stimulus and other things that you see. फिर when it is a good story, you have to narrate it as well. You have to be fluent, good English, confidently, eye contact with your group. All of these things are noticed. So, and last of all, discussion. Participate in the discussion, and that gets you screened in.
this is a sure shot way to get screened in. ग्रेट है ना. होपफुली ऑल द कैंडिडेट्स हैव टेकन अ नोट ऑफ ऑल द की पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, दिस इज हाईली एप्लीकेबल फॉर ऑल रिपीटर्स एज वेल, क्योंकि यही चीज़ें है ना, जब हम भी रिकमेंड हुए थे बीइंग अ रिपीटर देन बैक टू बैक गेटिंग रिकमेंडेशन अदर थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली वर्क्स अगर आप इसको बोलते हैं ना विद वहाँ पे ग्राउंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इफ़ यू इम्प्लीमेंट दैट्स मोर देन सफिशिएंट. एंड स्क्रीनिंग इज अगेन हम एक चीज़ बताते हैं कि इट्स नॉट अ साइंटिफिक टेस्टिंग मेथड, कभी कभी अच्छे ही बाहर हो जाते हैं. एंड इवन दिस इजर ऑल्सो सेज दिस थिंग, सो कभी दिल पे नहीं ले लेना, अरे मैं तो स्क्रीन आउट हो गया अब तो क्या ही होगा. अगर आयुष दिल पे ले चुके होते तो आज एक IMA के क्रेडिट मिस हो जाते, है ना. और Right. इवेंचुअली ऑल इंडिया रैंक ऐसा होता है ना, सिंगल डिजिट में आना वुड हैव बीन अ चैलेंज. ओके गुड. सो आयुष, आपने एक चीज़ मेंशन करा, आई होप काफ़ी कैंडिडेट्स के है ना कान खड़े भी हो गए होंगे, द माइक्रो एक्शन. सो व्हाट इज़ दिस माइक्रो एक्शन एंड व्हाट डिड यू अंडरस्टूड, क्योंकि ये चीज़ हमारा एक काफ़ी हद तक हम हाईलाइट करते हैं हमारे सेशंस में भी, और यही चीज़ आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में कैसे इम्प्लीमेंट किया. डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि मैं पहले ना आंसर कर पाता. तो शुरू ऐसे होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टोरी हैज 3 पार्ट्स. वहाँ जो इमेज हम देख रहे हैं वहां तक कैसे पहुंची वो स्टोरी, मतलब उससे पहले क्या हुआ है, दिस इज जस्ट 1 or 2 लाइन्स, और फिर एवरीथिंग एंड्स हैप्पीली, एवरीथिंग इज गुड टू गो, दिस इज द लास्ट लाइन. अब इसके बीच वाला जो पार्ट है, वेयर इज द मेन स्टोरी ऑफ 90-80 वर्ड्स, दैट इज द माइक्रो एक्शन. एंड यू हैव टू पुट माइक्रो एक्शन. जैसे नहीं कि इट्स अ फ्लो कि डिस्क्राइब नहीं करना है कि देयर इज दिस, देयर इज दिस, देयर इज दिस. व्हाट द हीरो डज, how he does those things, how he acts upon the situation, and how he reacts to the peers, or dynamic nature कैसे वो show कर रहा है अपना. Those are the micro actions which are when you experience in life tackling any situation. So those small things that you do, they are the micro actions in the story. That is what you write. गुड. सो बेसिकली माइक्रो एक्शन इज द व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर, और उसी के अंदर जो डिटेलिंग होती है, द पिक्चर जो आप देखते हो, लोग कहते हैं पिक्चर को देखने के बाद उनको ये हिट हुआ और फिर वहाँ से वहाँ चले गए, बट दे कांट स्टिक टू द पिक्चर. एंड हम एक ही चीज़ कहते हैं, इवन सारे कैंडिडेट जो रिकमेंड भी होते हैं, सो फॉर 120+ रिकमेंडेशन हैव हैपेंड, एंड आयुष भी एक उस जोन में थे जब बैक टू बैक 3 दिन 3 रिकमेंडेशन हुए थे. विल कम टू दैट पार्ट लेटर. सो मतलब हम क्या करते हैं, पिक्चर को देखते हो, टच करके आगे चल जाते हैं, बट द मेन जॉब इज कि आप पिक्चर में रुको, आप सोचो क्या दिख रहा है डिटेल्स, फिर उसके इर्द गिर्द बनाओ, एंड दैट इज़ व्हाट इज स्टिमुलस. और यही एक परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आयुष ने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया. सो आयुष, नाउ हमें ये बताइए कि हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें पूरा दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, और काफ़ी लोग सोचते हैं हमें इतने वर्ड्स कर लेंगे, इतने स्टोरीज लिख लेंगे तो हो जाएंगे, और एट द सेम टाइम कोई कहता है कि 60 के 60 SRTs करो तभी हो पाएगा. सो व्हाट ऑल थिंग्स यू एनालाइज्ड इन योर प्रिपरेशन, एंड सिंस ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब तो मिथ्स ही है, बट वुड पीपल वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू ओनली कि आपने ऐसे किस चीज़ों का ध्यान रखा, एंड व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. सर, मैं ऐसे ही कहूंगा कि देयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो राइट और रॉन्ग अप्रोच, है ना. ये एवरीबडी इन द मिलिट्री नोज इट. देयर इज नो राइट वे और नो रॉन्ग वे, देयर इज जस्ट मिलिट्री वे. ठीक है. तो अब मेरा तरीका तो ऐसी था कि जब क्लास होती थी साइकोलॉजी की, मतलब मेरी जो स्पेशल सेशन होता था ध्रुव सर के साथ, तो उससे पहले वो मेरे को काम दे के रखते थे कि 10 स्टोरीज लिख के रखनी है, कि 20 WATs लिख के रखने हैं. तो वो मैं लिख के रखता था. फिर जब वो असेस होती थी, वो मुझे चीजें बताते थे. फिर मैं जब नेक्स्ट स्टोरी लिखता था तो वो मैं 10 चीजें दिमाग में रख के लिखता था कि अब ये चीजें गलत नहीं करनी है, ऐसे लिखना है. तो धीरे धीरे करके ओवर द कोर्स ऑफ 15 days 20 days, मतलब ऐसा पॉइंट आ गया था एक बारी बीच में कि स्टोरीज में बहुत, मतलब एक गलती हो रही है या 2 ही गलती हो रही है सारी स्टोरीज मिला के. सेम WAT में तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि नहीं बन रहे थे सेंटेंसेस एकदम. 15 सेकंड में लिखना भी है, सोचना भी है, गलत भी नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस होना चाहिए. बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हो गया वो भी इम्प्रूव. इट्स जस्ट कि यू जस्ट हैव टू डू इट, कीप ऑन डूइंग इट, कंसिस्टेंसी. As anybody else says it, so consistency is the key. Just keep doing it. Great. And what about SRT and SD?
SDT, हाँ, SDT was evaluated 2 times. That was like basic. You just have, उसमें कुछ गलत नहीं लिखना है, मतलब खुद के बारे में लिखना है, कुछ नेगेटिव नहीं लिखना है. और SRTs, get the task done. This is the main key behind solving an SRT. So no matter how many you do it, if you are doing it correctly, कि you are getting the job done, you'll get through. करेक्ट, राइटली सेड. सो जैसे आपने बताया गेट योर टास्क डन एंड देर इज ओनली अ मिलिट्री वे. सो दैट इज द रीज़न हम स्टार्टिंग डे में जो कैंडिडेट आते हैं हम बता देते हैं SSB इज ऑल अबाउट वॉर. अब ये मत सोच के जाओ कि मैं तो 10+2 वाला एंट्री हूँ, मैं तो जैग एंट्री के लिए जा रही हूँ या जो भी है. काफ़ी लोग सोचते हैं इस पर्सपेक्टिव में कि हम ये कर लेंगे और हो जाएंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो रियल लाइफ है उसमें आप कैसे इनकलकेट कर पाते हो अपने इस वॉर लाइक मेंटालिटी को, कि आपके पास टाइम की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है. जैसे थोड़ी देर पहले आयुष ऑल्सो मेंशन रिगार्डिंग मटेरियल मैनेजमेंट, कैसे उनके नीचे जो मेन मटेरियल आते थे उन्होंने कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज. तो वही चीज़ों का रिफ्लेक्शन इज SSB. GP में आप करते हो, स्टोरीज में आप करते हो, SRTs में करते हो, इंटरव्यू में करते हो. ओके, सो मूविंग ऑन टू द पोर्शन ऑफ इंटरव्यू. सो आयुष, आपने इस चीज़ की तैयारी कैसे करी, क्योंकि ये अपने में एक मुझे अभी भी याद आ रहे हैं आपके इंटरव्यू के आंसर्स एंड अदर थिंग्स. सो हाउ डिड यू, है ना, लाइक यहाँ पे आपने एक मॉक दिया, फिर वहाँ जाके दिया. सो एंड पीपल ऑल्सो नो कि क्या होता है जो रिपीटर्स देख रहे होंगे TGC एंट्रीज में. सो डू मेंशन अबाउट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन विद अस एज वेल एज आपने खुद से क्या किया, एंड ऑल्सो डू मेंशन कि वहाँ जाके जो आपने यहाँ पे इतनी तैयारी करी, वहाँ जाके कितना हद तक वो सब चीज़ें काम आई आपको. ऑल राइट, तो इसको ऐसे ही शुरू करूँगा कि जब तक ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने लास्ट में रखी थी विद कल्ट SSB, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और तो मेरे 2 ही इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, एक पहला मॉक बेसिक जिसके बाद असेसमेंट के बाद 1 फाइनल एक ऐसे SSB इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ. तो दोनों में ही आई गॉट रियली गुड नॉलेज. कि पहला इंटरव्यू तो इट वाज लाइक हाउ एम आई सिटिंग, हाउ एम आई टॉकिंग एंड हाउ डू आई हैव टू वॉक इनटू द रूम. ये चीजें आशीष सर ने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को समझाई. एंड देन हाउ डू आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कैसे शुरू करना है. हाँ, इतनी चीजें थी. एंड देन फिर आफ्टर दिस, मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन गिविंग माई इंटरव्यू एक्सेप्ट द थिंग कि टेक्निकल क्वेश्चन जब आएंगे तो हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल देम. देन देयर इज नो अदर वे ऑफ कोर्स. तो गूगल गया, उस पे चीट शीट्स मैंने देखी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, नॉट जस्ट SSBs बट ऑल इंटरव्यूज, टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. तो वहां से मैंने पढ़ा वो सारी चीजें एंड देन आई मेमोराइज्ड देम. बट लकीली इतना ज्यादा टेक्निकल गए नहीं. इंटरव्यू मेरा एक्चुअल इंटरव्यू जो था इट वाज मोर लाइक कि CIQ था एंड देन इंट्रोडक्शन एंड देन व्हाई डू आई हैव टू जॉइन आर्मी, व्हाई डू आई वांट टू जॉइन आर्मी, इन व्हिच आर्म विल आई बी जॉइनिंग इन द आर्मी एंड व्हाई. तो ऑल ऑफ दिस मिक्स ऑफ द क्वेश्चंस वाज द gist of the interview. सो नाउ आपने क्वेश्चन बता ही दिया एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन का कि सर हम तो सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, हमें आंसर प्रिपेयर नहीं होता, व्हाई शुड वी जॉइन आर्मी. सो है ना, आयुष को सुन के और भी आपका एक और आंसर रेडी हो जाएगा. सो आयुष, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? This is a very not good question for everybody to listen, but if the assessor was listening, तो I'll just say कि मैंने वहाँ क्या बोला था. हाँ, जो आपने बोला वही बताइए. ठीक है, तो I told the assessor कि I am really meant for helping people. Whenever I walk out of my house or college, whenever I'm in the outside of the comfort zone and I see anybody or anyone suffering, I tend to help them and it helps me satisfy my soul. So this is why I want to join army, because I'll be saving the nationwide people with my best of the efforts. And that is how I presented my answer there. So basically आपने, मतलब ये काफ़ी लोग बोलते हैं बचपन से ड्रीम था, ये था, आपने उससे काफ़ी अलग तरीके से प्रेजेंट किया कि नेचुरल सेल्फ इज़ टू हेल्प पीपल एंड एट द सेम टाइम आपको कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को जितना हो सकता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो यूनिक, है ना. आप देखा, आप सब लोग ने नोटिस किया होगा कि
इट्स नॉट अबाउट कि है ना कि जो कन्वेंशनल आंसर चल रहा है वही बोलो. It should be related to your life and something which has to be cherished and nurtured in the due course of time, which you have understood. Great, good to know that यार about your interview preparation. Now to mention about GTO, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अब ऑनलाइन से सब चीज़ें करी है और टाइम वॉज अगेन अ चैलेंज. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर GTO एज अ कॉर्पोरेट गाय एंड ऑल्सो मेड श्योर दैट कि तैयारी छूट ना जाए. एंड हाउ डिड यू इम्प्लीमेंटेड ऑल दोज थिंग्स. काफ़ी सारे लोग का मिथ्स रहता है कि सर हम तो ऑफलाइन जाएंगे तभी कुछ चीज़ें हो पाएगा. तो हाउ डिड यू वर्क ऑन ऑनलाइन ओनली एंड मेड श्योर दैट आपका जो GTO के प्रिपरेशन होता है वो बहुत स्मूथ हो जाए. नागपुर में AFPA है, and there the friend who motivated me to join armed forces and to give SSB after 5 years, and he was the one who initiated my AFPA as well. तो AFPA में जाके there is a very good GTO ground जहाँ पर हम फिजिकली प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते थे सारी चीजें. एंड वहाँ पर उन्होंने, नटराजन सर हैं, उन्होंने सारी चीजें बताई, बहुत अच्छे से समझाई. GPE GD ऑल्सो वेरी गुड. लेक्चरेट वहाँ पर आई वॉज फेसिंग वेरी मच इशू देयर, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई वॉज नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन GK, करंट अफेयर्स एंड न्यूज एंड स्टफ. तो इसलिए लेक्चरेट वॉज अ वेरी मेजर इशू देयर. बट GP वॉज गुड. I was having no issue in GP and GT and all those things. But when I came back, it was like 10 days, 12 days there. And so after coming back, since loss of practice and since consistency is the key, so things start to get degrade with course of time. But just before my SSB, in the cult, when I was learning about the frameworks for the GDs and GPs and lecturate, so there, of course, it all got freshened up, and they were very important key when coming to the GD topics, key, the special framework as which is taught in the cult SSB. So they are really helpful. Matlab, they proved to be really helpful. And even in the lecturate, I was very not confident in my lecturate before I saw the topics. But when I just saw the topics, there were 5 topics on my card, and I chose the lowest quality topic there because I was most confident in that topic, and so I delivered it really well. Everybody was very great. So impacted. yes, so finally you also cleared one of the myth of candidates. Generally ये freshers के myths रहते हैं, repeaters तो I hope they have already gone through a lot of things. सो काफ़ी लोग सोचते हैं हमें हाई लेवल लेना चाहिए या मीडियम लेवल लेना चाहिए. सो आयुष, मिस्टर आयुष secured all India rank 4, took a normal topic, spoke confidently and made it. तो all those things are there. काफ़ी जगह बोलते हैं, काफ़ी सारे recommended वाले कहते हैं टॉप ही लेना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. You have to understand that you have to be confident. हाँ जी. Even in the individual obstacles, sir, I was not confident about me climbing a rope, and so I kept it for the last. And just as I reached the rope in the last obstacle, the whistle was blown. So I completed only one less obstacle basically of the total obstacle. So मतलब total आपने 9 out of 10. Yes. That's good. That's pretty nice. Okay, so this was your GTO thing. So would you like if you can remember your GD का topic या anything as such, क्योंकि candidates would definitely think please tell your GD topic sir. काफ़ी लोग वरना व्हाट्सएप टेलीग्राम में पूछते ही रहते हैं. सो इज देयर एनीथिंग जो आपको इफ यू कैन रिकलेक्ट? Yes, I can recollect, but I mean GD topics are very normal and anybody can have a informal, spontaneous discussion on a cup of tea in GD topics. So the first one was like since we were all employed, some of us were employed there, and so it was related to employment. Ki if you are looking for a job, which factors do you consider? The first one is the growth exponent. Ki how fast are you going to grow in this job? The financial matters. Ki how much are they paying you? Or the work-life balance. So these 3 were the leads for this. And the second one was ki international relations. Bilateral international relations are based on ideologies or defense, and the third lead I'm forgetting it. I guess it was trade. So
candidates have taken a note of it as well. So generally, the topics are very versatile. It depends on Yeah. whatever is context is happening across the globe. Ayush got recommended long back in the month of September. 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 So it's been more than around 3-4 months. एंड स्टिल ही कैन रिकलेक्ट. तो आप खुद सोचो आप एज अ कैंडिडेट को कितने सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए. ग्रेट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड है ना. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का भी ये रहेगा कि सर आपके कुछ कॉन्फ्रेंस में ऐसे कोई क्वेश्चंस थे या ऐसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े चैलेंजिंग लगे या ट्रिकी लगे, विच यू वुड लाइक टू शेयर द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर, जिससे कि कैंडिडेट वो हद तक भी प्रिपेयर कर पाए. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था कि when he was asking me about which arm would I like to join, तो the first one was I said कि core of signals, क्योंकि background electronics and communication engineering and any sane personality would opt for that given the 5 years of experience and background and all those things in a technical graduate course. क्योंकि अगर आप infantry बोलोगे तो you'll have to justify it with a very strong reason being an engineering graduate. तो आइडियली मैंने भी कोर ऑफ सिग्नल्स बोला. उन्होंने कोर ऑफ सिग्नल्स के बारे में 1-2 सवाल पूछे, उनके मैं जवाब पढ़ के गया था कि व्हाट आर दे डूइंग करेंटली. वो करके भी जाना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी. सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा इफ नॉट कोर ऑफ सिग्नल्स तो देन व्हाट. तो फिर मैंने कहा कि इन्फेंट्री. उन्होंने कहा व्हाई. अब इसको जस्टिफिकेशन के लिए मैंने जो आंसर दिया उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू आयुष, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. तो मैंने आंसर दिया था कि सर व्हाट बेटर वे इफ नॉट इन द कोर ऑफ सिग्नल्स टू व्हाट बेटर वे टू किल एन एनिमी ऑन हेड. तो यहाँ से सो बेसिकली आपने काफ़ी डीप सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आंसर दिया ये. एंड ऐसा होना भी चाहिए. वी ऑल्सो टेल कैंडिडेट्स कि इट्स नॉट अबाउट कि आप सीधा सीधा वन एकदम आंसर दे रहे हो. Yeah, you need not do beating the bush, but there is a concept called ABCRL, accuracy, brevity, clarity, relevant and logic. तो ये हम पढ़ाते हैं, काफ़ी डीप में समझाते हैं. सो एंड इन दैट वी सजेस्ट कि आपके जब रेलिवेंट में जब जाते हैं वहाँ से आपके काफ़ी हद तक लाइवलीनेस भी दिखता है. और लाइवलीनेस इज सिनोनिमस टू सेंस ऑफ ह्यूमर. कि आप जब वो चीज़ को समझोगे नहीं, उसको कैसे वो होता है ना, दैट इंप्रेशन आएगा कि यस दिस कैंडिडेट हैव लेफ्ट अ रिमार्क या लेफ्ट अ है ना मार्क. एंड आई वुड से कि ये काफ़ी हद तक एक पुश फैक्टर भी रहा होगा. टोटल हाउ मेनी गॉट रिकमेंडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स? आई वाज सीइंग द मेरिट लिस्ट. अराउंड 25-27. सो ऑल इंडिया में 25 लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बाकी तो और भी बहुत लोग हैं मैकेनिकल में, सिविल में एंड अदर ब्रांचेस, मिसलेनियस में. बट आयुष स्टूड 4th. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज ही वाज नॉट अ प्रीवियसली रिकमेंडेड. ही वाज नॉट फ्रॉम एनी एकेडमी, लाइक एकेडमी एज इन मतलब जनरली एक्स ओटीए या एक्स आई नहीं, वो लोग भी जाते हैं डीजीसी के लिए. तो इवेंचुअली I had batchmates from ex-OTA and even मैकेनिकल से मेरे साथ में ही थे जो वहाँ पर मेडिकल के लिए साथ में रुके हुए थे. He was an ex-IMA CDS entry. So I hope they also got in the merit. Yes, they got. Great. Good to know that. So Ayush, चलो यार ये तो बात होगी एसएसबी की. So अब बताइए यार, since you joined Cult and then you were also working, so would you like to suggest people who are working, who are in the final year, about this thing? Because हम starting में कहते कोई भी candidate जब आते हैं, it's very flexible, and tell us the journey. How did you got to know about us? आपको कैसे पता चला हमारे बारे में, and what made you thought कि नहीं यहाँ आ जाना चाहिए? क्योंकि that initial जो inertia होता है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन में कैसे होगा, करवा भी पाएंगे कि नहीं, है ना. काफ़ी लोग सोचते हैं एसएसआर है नहीं, कैसे होगा. सो क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑफलाइन लेकर आए थे फिर देन कमिंग हियर, क्योंकि काफ़ी हद तक कैंडिडेट्स इस डिलेमा में रहते हैं. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एंड व्हाट डिलेमा यू वुड लाइक टू ब्रेक हियर? So this is a very nice question that I would answer here. कि first of all मेरा भी यही थॉट था शुरू में कि since you guys are no assessors, so how are you going to tell us कि how to crack it? But then the knowledge that you have, the way to present ourselves that you provide us, ये चीजें no assessor gives us, and this is what the actually needed to go, the mentality that we have to go in the SSB with. So this is what the Cult gives, and any working professional or any college student that is present out there, so it's a best way to to enroll in Cult and
get yourself an edge over the mindset on the perspective of mindset first of all. That is really necessary here. सो ऑल्सो डू सजेस्ट कि सिंस आपके टाइम को मैनेज कर रहे थे, टाइम को वो हम टाइम वॉज अ बैरियर ऑल्सो, आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी हद तक हमारे जितने भी सेशंस हो रहे थे वो इधर यू आर इन रिकॉर्डिंग, तो हमें अलग से आपके लिए स्लॉट्स निकालने पड़ रहे थे. सो टेल अस कि वाज इट फ्लेक्सिबल इनफ. एंड अभी भी मुझे याद है कि आप इंटरव्यू 2 दिन बाद आपकी एसएसबी थी एंड यू आर लाइक सर मुझे इंटरव्यू में आना है, मेरे पूरे इंटरव्यू का बैच करवा दो. जनरली 15 दिन लगते हैं, वो हमने आपके लिए 2 दिन में कवर करवाए थे. सो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू कल्ट फॉर दैट कि बिल्कुल ही मतलब मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग यू गाइज हेल्प्ड मी आउट अ लॉट. मतलब रात को 11 बजे भी सेशन हो रहे हैं, सुबह अगेन 6:30-7 बजे भी सेशन हो रहे हैं. फिर ऑफ कोर्स इंटरव्यू का आपने जैसे बोल ही दिया कि एकदम से ही मैंने बोला था कि मेरे को एक प्रैक्टिस चाहिए है, एंड देन वो एक मॉक जिसमें के बाद असेसमेंट मिल गई, उसके बाद भी एक फाइनल इंटरव्यू अरेंज करना, दैट वाज आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस. राइट. मुझे भी याद है दैट इवनिंग कॉल सर आना है, फिर उसी इवनिंग में इंटरव्यू होना, फिर अगले दिन सुबह, फिर शाम, फिर नेक्स्ट डे यू बोर्डेड योर दिस थिंग. ग्रेट. So, all right, Ayush, got to learn a lot of things about you from screening perspective, psych, G2 and interview, and also as a working employee, you also suggested a lot of things. Also, now tell us, like 2-3 questions last remaining. So, since you are working in a domain, जो generally candidate after their engineering, generally इतना इस field में नहीं जाते हैं, या this sector, या फिर उनको या तो exposure नहीं होता. What is this field all about? And अगर मान लो आप as a वापस candidate prepare कर रहे होते इसी field को लेकर, the domain which you are working, what piece of questions you would have prepared, and what piece of advices or suggestion you would give if someone is preparing from EC branch for TGC electronics as well as SSC Tech electronics, या as well as जो भी entries के लिए जा रहे CDS हो या whatever entry FCAT. So क्या questions आपने तैयारी करी, किस हद तक आपने लेके गए like level को, क्योंकि आपने खुद भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर किया होगा इस चीज़ को समझने के लिए. So the questions that I prepared for my domain and for the electronics and communication, starting with basically मैंने electronics and communication के ज़्यादा questions prepare किए थे, क्योंकि उसमें मैंने 5 साल की मेरे पास डिग्री थी इस करके. तो मेरे 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं बिकॉज एमटेक करी थी उसमें, तो उससे रिलेटेड मेरे जो रिसर्च थे उससे रिलेटेड तो आई वॉज वेरी थ्रू एंड थ्रू कि मेरे को कुछ मर्जी पूछ लें, उसके आगे पीछे का ऊपर नीचे का वो सारी चीजें आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ. उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हाउ ट्रांजिस्टर्स वर्क, हाउ रेक्टिफायर्स वर्क, जो भी बेसिक डायोड्स, प्रिंसिपल सर्किट्स होते हैं, एम्पलीफायर्स एंड ऑल, वो सारी बेसिक चीजें ये सारी. उसके अलावा फिर देन जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी में व्हेन दे आर यूजिंग सम इक्विपमेंट्स या फिर कोर ऑफ सिग्नल्स में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईसी एंड व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स जो ईसी के डोमेन में उधर हो रही हैं. पर्टिकुलरली मेरे यहाँ पर वेयर आई बिलोंग फ्रॉम चंडीगढ़, तो यहाँ पर वेस्टर्न कमांड है. वेस्टर्न कमांड में जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिलेटेड टू ईसी, वो सब चीजें पता करनी. So these are the main important things. Further कि the job I do, उसमें तो I am practically involved in the job, तो वो तो सिर्फ job related होता है कि what do you do and what is it कि you actually explore आगे, मतलब what are the further growth aspects. So all right, that's great. So एनी टेक्निकल क्वेश्चन जो आपको लगता है कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, जैसे आपने ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी लोग एंटीनास के बारे में प्रिपेयर करते हैं, हाउ डज एन एंटीना वर्क्स. एंड ऑल्सो आपने इस बेसिक्स पे क्या क्या काम किया, बिकॉज आपने रिसर्च पेपर किया, दैट्स समथिंग ग्रेट. तो काफ़ी सारे लोग बेसिक्स में भी करते हैं, काफ़ी लोग ने रिसर्च पेपर एंड ऑल तो नहीं किया होगा. सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए उनके लिए? सर बिल्कुल, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, उसमें जितना सब्जेक्ट होता है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड वेरी थरली. कि सीमॉस ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मॉसफेट्स होते हैं, एंटीनास तो जैसे आपने बताई दिया दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, पर एंटीनास हो गए और फिर एम्पलीफायर्स, हाउ डू दे वर्क, इनके मोटे मोटे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं. मतलब दीज आर द बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस होने चाहिए. ग्रेट. सो आई होप ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, या जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं,
सो आपकी इंजीनियरिंग के डे वन से ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि फाइनल ईयर में राइट। जाके तैयारी करते हो. आयुष हैज़ राइटली सेड दैट ही हैज़ डन एन इंटीग्रेटेड कोर्स, एंड तैयारी बेसिक से ही जब शुरू हो रहती है तो आपको लंबा जर्नी ऑन नहीं खींचना होता आफ्टर योर इंजीनियरिंग. So very nicely mentioned by Ayush. So Ayush, now since you have got the joining letter, what was that feeling finally? एक तो होता है कि हाँ recommend होना, प्लस साइन लेना, एंड दूसरा होता है मेडिकल फिट होना, आप सिंगल शॉट में वो है, एंड थर्ड इज है ना, यू गॉट मेरिट एंड वेरी नाइसली, टच वुड टू ऑल दिस थिंग्स. एंड हम बात करते करते यू ऑल्सो गॉट दिस जॉइनिंग लेटर. सो व्हाट वाज दैट फीलिंग, हाउ इज योर फैमिली फीलिंग, एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट? क्योंकि आप एक सिविलियन बैकग्राउंड से आते हो, एंड फिर थिंग्स आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आउट ऑफ नोवेयर नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक अ रिगरस प्रोसेस. तो व्हाट वाज दैट फीलिंग एंड मोमेंट? अमेजिंग फीलिंग सर, मतलब इट कैनॉट बी पुट इन टू वर्ड्स. मतलब जब दिल भरा हो जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, पर आंखों से आंसू आने वाले होते हैं, जस्ट वो वर्ड्स पे हमारा दिल होता है. दैट इज द फीलिंग जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है कि congratulations, you have to report on in IMA on 5th of January. तो a very different and good feeling. Definitely. मतलब और ये भावनाओं को बोलते हैं ना, जितना भी हम बताएं ये इट्स बियॉन्ड वर्ड्स, नो वर्ड्स, एंड आई कैन रिलेट वेरी नाइसली विद यू, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है, हमें लगता है कि क्या होगा, लोग सोचते हैं कि रिकमेंड होना यही ड्रीम होता है, बट द प्रोसेस विच यू एंजॉय इन दिस प्रिपरेशन है ना, कोई भी जो ये प्रोसेस को एंजॉय नहीं करता तो कांट टेक दिस फ्रूट कि यस ये बहुत अच्छा चीज़ है, या कैसे इसको एंजॉय करें. बट आई वुड से रिकमेंडेशन, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब छोटी चीज़ है. अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे तो, प्रोसेस को एक बार एंजॉय कर लिया फिर तो जैसे आयुष कह रहे हैं है ना, बिकॉज वो जो सेक्रीफाइसिंग नाइट्स विद ऑफिस जॉब, फिर उसके बाद आई ऑल्सो रिमेंबर कि किस हद तक सुबह जल्दी उठना बियॉन्ड लाइक ऑफिस आवर्स से भी पहले, कि हाँ तैयारी करनी है मुझे, क्लासेस मिस हो रहे हैं, एंड इवन ट्रैवल के टाइम में भी करते रहना चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं, बट वो स्ट्रक्चर तरीका विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ओके आयुष, सो लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दिस टॉक शो, बिकॉज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स काफ़ी हद तक एंड तक सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छा भी लगा उन्हें. So what piece of advice, suggestion you would give for anyone who is going for their SSB या AFSB या जो भी एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, बिकॉज आप ऐसा कैंडिडेट भी देखे, आप अभी आप ज्वाइन भी करने वाले हो. सो टेल अस इन 4 to 5 पॉइंट्स जो इन जनरली कैंडिडेट्स को ध्यान रखने चाहिए इन देयर प्रिपरेशन, या इफ दे आर इन SSB क्या चीज़ों का मेक श्योर करना चाहिए. यू कैन टेल इन दैट वे. तो मेरा तो एक कोट है जिसके सहारे मैं चलता हूँ हमेशा ही, कि प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वन. इतना रगड़ के प्रैक्टिस करो कि तुम्हें कभी जीत मिली ही नहीं है आज तक. एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट. जब द डे यू आर इन SSB, जब तुमने पैर रख दिया सिलेक्शन सेंटर में, तो भूल जाओ तुम्हारी रातें गई. नथिंग वुड मैटर इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड देयर. तो वहां पर तो शेर की तरह पर ऐसे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एक ऐसा वॉर माइंडसेट के साथ कि मैंने ही जीतना है, इस तरीके से करना है. दिस इज द ओनली पीस ऑफ एडवाइस, लास्ट मोमेंट पीस ऑफ एडवाइस जो है ये. नहीं तो ऑफ कोर्स इट इज जो मेन रहेगा वो कि इट इज ऑलवेज द डे वन. जब आप शुरू कर रहे हो तब से ही आपकी सारी चीजें शुरू हो जाती है, और माइंडसेट इज द वन थिंग दैट यू हैव टू ट्रेन. बाकी सब चीजें हो जाती हैं. Nicely said by a single line. और यही एक यूनिक चीज़ देती है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कल्ट एज वेल, जो बहुत अच्छे से रिकमेंड होते हैं, ज्वाइन करते हैं. सिंगल चीज़ में ख़त्म करनी चीज़ है, क्योंकि बोलते हैं ना दैट डिस्ट्रक्शन शुड बी लाउड एंड क्लियर, है ना. अदरवाइज है ना, मिसाइल्स तो सभी फायर कर रहे हैं, है ना, सबके पास ही पिस्तल है, बट मिसाइल्स किसी किसी के पास ही है. तो प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वन. और ये लाइन आयुष के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती भी है, बिकॉज इन्होंने जेई भी क्रैक किया उन्होंने इनिशियल डेज में, ही जॉइन NIT. काफ़ी लोग इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, उनके लिए भी एक सेट मार्क रहेगा कि देखो आप अगर मान लो इनिशियल डेज में इफ़ यू आर नॉट एबल टू जॉइन फोर्सेस, बट यू कैन इवेंचुअली जॉइन आफ्टर योर कंप्लीशन, एंड ही डिड अ इंटीग्रेटेड कोर्स. ओके, सो आयुष, मतलब वन मोर क्वेश्चन क्लिक्ड अप इन माइंड. क्वेश्चन नहीं, आई वुड से कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस व्हेन 3 बैक टू बैक स्टूडेंट्स ऑफ कल्ट गॉट रिकमेंडेड आप ही के आगे पीछे करके, एंड वन हैज ऑलरेडी जॉइन इन एकेडमी, वन विल जॉइन विद यू. आप लोग ने शायद बात भी करा होगा. सो टेल अस दैट मोमेंट, क्योंकि आप उसमें सबसे पहले शायद कैंडिडेट थे या शायद दूसरे थे जो 3 दिन 3 रिकमेंडेशन
मैं दूसरा था सर। दूसरे थे, अच्छा। तो टेल अस दैट कि आपसे जस्ट एक दिन पहले हुए, फिर आपके एक दिन बाद हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं तो हर जगह ही यही चल रहा है माहौल। तो मतलब एग्जैक्टली जब हम सिलेक्शन सेंटर में हम लाइंस में होते थे तो जैसा सर ने बताया कि तो आई हैव एनकाउंटर्ड मेनी मल्टीपल फ्रेंड्स देयर, ठीक है। तो वन अनदर वाज सौरभ सर जो ऑलरेडी सर्विस कर में है उसमें, एंड ही इज ऑफ डिफरेंट एंट्री। तो वेरी नाइस गाय फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो मुझसे ज्यादा खुश थे कि मैं रेकमेंड हो गया हूँ। तो दिस इज व्हाट द फीलिंग, मतलब द जर्नी दैट गिव्स यू। तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और फील होता है जब ऐसे यू नो सेम सेम बैकग्राउंड से पढ़ साथ में रहे हैं, रेकमेंड भी साथ में हो रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सब लोग, आप सब, मुझे अभी भी याद है, आदित्य हु इज नाउ इन ओटी आई गेस, एंड देन आप, फिर सौरभ, एक ही टाइम फ्रेम में आए थे, अगस्त सितंबर में, एंड देन यू ऑल प्रिपेयर्ड। और भी काफ़ी लोग रेकमेंड हुआ अलग अलग बोर्ड से, कोई बैंगलोर से हुआ, कोई यहाँ से हुए, बट लकीली, और होता है ना कि एक साथ एक ही अलग अलग दिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, रेकमेंड भी हो रहे हो, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल है तीनों साथ में फिट भी हो रहे हो, ज्वाइनिंग भी साथ में, आगे पीछे अलग अलग कैटेगरी जा रही है। तो बोलते हैं ना दैट ब्रदर ऑफिसर्स साथ से ही यहाँ से जा रहे हैं, and that makes us even our objective of cult. So far cult has produced more than 45 commissioned officers till date, and 120 plus recommendation, उसमें से आपका भी, आप सभी के contributions है उसमें। इसमें से आदित्य जो थे, he was one of our triple recommended candidate, जो इससे पहले एयरफोर्स में था, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, जो उनके थे, एंड great, good to know that. So all right, ladies and gentlemen, so this was Mr. Ayush इन फ्रंट ऑफ यू, एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने हर चीज़ शेयर करी, बताई अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, एंड मेड श्योर दैट कि कैसे आप एज अ कॉर्पोरेट या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, यू कैन स्टिल प्रिपेयर, बिकॉज इफ़ यू प्रैक्टिस लाइक इफ़ यू हैव नेवर वन, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको काफ़ी लॉन्ग रन में हेल्प करती है। तो थैंक यू सो मच आयुष फॉर ज्वाइनिंग टुडे, शेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम एक्सपीरियंसेस। Thank you sir so much. Thank you for teaching me and guiding me all through the toughness. Always welcome, and we wish you all the very best for your upcoming training routine, क्योंकि अब training is something जो कि that will blow your mind, giving you from my experience, and definitely that should blow, because at the end of the day it's service which demands you, बोलते हैं ना, service before yourself, तो that is very important, and we wish you all the very best on behalf of whole cult and fraternity, our whole team, all our organization, and all the candidates out here who has watched this video till end, definitely do like, share, subscribe, share with your friends who are preparing for SSB, getting wanderlust की कैसे तैयारी करे, क्या करे, कहाँ जाए, तो आप इनको ये वीडियो भेजना, शेयर करना, बताना, एंड इससे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट भी चेक करना ऑफ ऑल द सक्सेस एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, एंड ऑल्सो टू मेंशन कि आपको क्या सबसे बढ़िया चीज़ लगी, क्या चीज़ आप लेके जाना चाहोगे, एंड ऑल्सो इन कमेंट यू कैन ऑल्सो मेंशन कि क्या चीज़ आप सुनना चाहोगे नेक्स्ट पॉडकास्ट या शो में, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिकॉज ऑफ यू, एंड इट्स बिकॉज ऑफ रिकमेंडेड एंड अदर स्टूडेंट्स जो हो रहे हैं यहाँ से, तो ऑल दोज थिंग्स पुशेस अस टू कंट्रीब्यूट मोर, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, एंड ऑल्सो टू आयुष फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद। So this was the story of Ayush, who got recommended from Cult SSB, and currently he is going under training in IMA Dehradun. We wish him best of luck, and if you want to get recommended without wasting your attempts, feel free to join us. The phone number is given below, and the link of Telegram channel is in the description. Do join that. Jai Hind.